From the Republic Media Network headquarters, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. This is Super Primetime Max on the debate with Arnab tonight, and something remarkable has happened. Rahul has gone anti-Hindu. By going off the written script in his first speech as leader of the opposition, Rahul Gandhi has landed in a gigantic mess. He has said that all BJP leaders, including Prime Minister Narendra Modi, are not Hindu. He has gone into great detail to project Hindus as violent. And he has casually lifted an image of Lord Shiv in Parliament, believe it or not, viewers, to launch into a totally incomprehensible, woke, childish discussion on spirituality. What more he's done? Well, let me tell you. He has praised Muslims and praised other minorities as Deshbhakts. He has said that minorities in India, Muslims have stood like a rock to defend national interest. But he has conveniently avoided any similar praise for Hindus. Why? Are Hindus not Deshbhakts? Why does Rahul Gandhi do these things? And now naturally he finds himself in a position where he is accused of villainizing Hinduism and praising all other religions. At some point in this, whatever you call it, speech or intangible mess, Rahul Gandhi realized that he had messed up. He tried to tone down, but by then the Prime Minister had accused him of insulting all Hindus. And across the entire country, leading Hindu spiritual leaders are now expressing shock and horror at Rahul's continuous anti-Hindu comments. Viewers, the Lutyens media is celebrating the fact that Rahul Gandhi has made headlines by making top ministers and the Prime Minister react. They don't realize that the BJP probably baited Rahul while he was behaving like this in Parliament today. And Rahul, over keen to please the Lutyens commentariat, has committed one of the biggest self-goals by targeting Hinduism in his first speech as LOP. This woke approach, this woke angle, this woke attitude will bring the RSS and the BJP even closer together and make you, even if you are an anti-BJP person, link this to the eradicate Sanatan line of the India Alliance. Through the entire elections, eradicate Sanatan, eradicate Sanatan. Sanatan is dengue, Sanatan is malaria, Sanatan is HIV. And now in your first speech, you go after Sanatan. My question tonight is whether Rahul even now should apologize or risk further damage by defending what he said in the Lok Sabha today. 3 debates tonight. The first is unbelievable. As LOP, Rahul goes anti-Hindu. What does he gain? What does he gain? What is he bitter about? Debate number 2 this evening, viewers. You have flogging going on all over Bengal in the name of Sharia law. And as street Sharia justice is implemented under Mamata Banerjee's Raj, the Gender Rights Brigade among the wokes, among the Lutyens commentariat is totally quiet. Debate number 3 tonight, we debate the missed opportunity. Oh, what an opportunity it was, perhaps the first time since his interview with me
to make amends, but Rahul Gandhi did not get serious even today. Huge lost opportunity. That's debate 3. And here are the headlines this Monday evening on the Debate Tonight. वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य आप हिंदू हो ही नहीं Nafrat, Hinsa, Asatya. Rahul takes a very strong line against Hindus in his first speech as leader of the opposition on the floor of the Lok Sabha. Calls the BJP violent, holds up pictures of Hindu gods, mocks the Prime Minister, and says that the Prime Minister and other BJP leaders are not Hindus. Not just anti-Hindu remarks that flooded his speech, but Rahul Gandhi triggers a huge controversy as the BJP says he was wrong on fact and misleading the House on multiple issues. The BJP now demanding that after this mess of a speech, Rahul substantiates or apologizes to the House. As Rahul Gandhi messed up, the Modi government came prepared for Rahul's first speech. Minister by minister fact checks Rahul, goes to the Speaker's chamber demanding that Rahul Gandhi gives proof or has his comments expunged from the records. Taliban-style Sharia law in Bengal. A couple was flogged brutally in Bengal. Uttar Dinajpur publicly flogged, ladies and gentlemen. A Taliban-style Sharia moment spilling on the streets of Bengal. The video is bone-chilling, sending shockwaves across the country. This has happened after a Muslim woman was stripped and paraded for over a kilometer. Last week, the so-called feminist lobby, the woke lobby, goes completely silent. Ladies and gentlemen, there is no end. There is no end to Rahul Gandhi's Hindu insult spree. It is his obsession. You would have thought that on his first speech, he would speak about the economy, geostrategy, multiple issues. But on the floor of the House, all that Rahul Gandhi said, repeatedly he went after Hindus. Hindus are violent. Hindus promote violence. BJP leaders are not Hindu. As LOP says, Prime Minister Narendra Modi is not a Hindu. Amit Shah is not a Hindu. Rajnath Singh is not a Hindu. At one point, it was not clear whether he was in control of his own observations. Ladies and gentlemen, these remarks have drawn anger and condemnation from across the country. Across the country. With people, not just politicians, demanding an apology, and top Hindu spiritual leaders saying they've been flabbergasted at the tone and frivolity with which Rahul Gandhi spoke. जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य Hindus insulted in the temple of democracy. This was Rahul's first address as leader of opposition. However, it was a wasted opportunity the moment he decided to abandon logic. Because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है. Instead of logical arguments to substantiate his points, the leader of opposition was seen resorting to using pictures of gods as a defense, giving out certificates of who is and who is not a Hindu in the parliament. जिस आप हिंदू हो ही नहीं. आप बात समझिए. ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है. बीजेपी को आपको नहीं. नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है. बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है. आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है. Throughout Rahul's anti-Hindu rant, there was a systematic attempt to equate violence
to the Hindu community. In other words, according to Gandhi, any proud Hindu could be seen as violent. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो The hypocrisy is seeping through because Rahul Gandhi decided to keep his silence on every pro-Khalistan movement, every Sartan se juda lobby. Rahul's hateful comments even compelled the Prime Minister to intervene. ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना BJP has not let this slide. वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था, और मानवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके सामने हुआ। आज ये भय की बात कर रहे हैं। Hindu saints are seething with anger. पूरा समाज आहत है, संत समाज में रोष है, पूरी हिंदू मान्यताओं पर उन्होंने प्रहार किया है, जो अत्यंत कोमल और करुणामयी संवेदनाएं, ऐसा कहकर उन्होंने संपूर्ण समाज को कलंकित किया है। ये शब्द मान्य नहीं है, उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगर राहुल जी आप हिंदुओं के साथ कभी उठते बैठते संवाद करते तब आपको पता चलता ना, आप तो कभी हिंदुओं के साथ रहे नहीं, इसके नाते हिंदुओं को हिंसक कह पा रहे हैं, लेकिन आपको माफी मांगना चाहिए। और जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं निवेदन करता हूं अन्य हिंदू नेताओं से, जो बीजेपी के अलावा अगर सदन में वो हिंदू हैं, जब तक वो माफी नहीं मांगे तब तक सदन में उनको बोलने का अधिकार नहीं। But the Congress has maintained that Rahul is not wrong. मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। Even as opposition remains defiant, the anger is mounting from all quarters. The question is, will Rahul apologize, or is this the new normal for the new leader of opposition? हिंसा हिंसा नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। On the debate this evening, I am honored and I am blessed to be joined right on top of the program tonight by one of the most revered saints of the Hindu community, Acharya Shri Swami Ji Avdeshanand Giri Ji, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, the chief of the very respected Juna Akhada, which has a special place for every Hindu in the country. Charan Sparsh, Swami Ji, this is Arnab here. Can you hear me? Yes. Thank you. I hear you. I'm very happy to be here. Thank you today. Always an honor to have you on my program, sir. Swamiji, when this debate happened, I was surprised at the tone of the debate. I thought it will be a discussion on economy, on maybe, geostrategic issues facing the country. But Rahul Gandhi said कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा 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 करते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य. Translating to the fact that all those who call themselves Hindus today are hateful, liars and violent. I am a Hindu. Swamiji, you are a Hindu. And this generalization has hurt many people. उन्होंने उस समुदाय को लांछित कर रहे हैं जो पशु पंछी परिंदों में परमात्मा को देखता है, धरती अंबर अग्नि जल वायु में ईश्वर का वास मानता है। हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, हम कभी किसी से वैर नहीं रखते।
हिंदू ने कभी हिंसा की नहीं। वो चींटियों को आटा खिलाता है, पंछियों को दाना डालता है। हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी जी से आज अपेक्षा थी कि वो कोई विकास की बात कहते, युवाओं की बात कहते, महिला सशक्तिकरण की बात उनको कहनी चाहिए थी, देश की सीमाओं की वो बात कहें यहाँ इस भारत के लोकतंत्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए। आज उन्होंने पूरे समुदाय को लांछित किया, पूरे समुदाय को अपमानित कर रहे हैं। उस सनातन संस्कृति, उन संवेदनाओं पर वो आक्षेप लगा रहे हैं जो चिरकाल से पूरे विश्व के मांगल्य कल्याण की कामना करती रही है। उन्हें इस प्रकार से अपमानित नहीं करना चाहिए। उस समाज को, जो समाज पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वो समाज, हिंदू समाज जो चिरकाल से इस धरती पर है, जब से भी ये धरती अमर अग्नि जल वायु है, तभी से सनातन संस्कृति है। इस प्रकार से उन्हें हिंदुओं को अपमानित नहीं करना चाहिए। आज पहला दिन था उनका, वो कोई गंभीर बात कहते, वो एक एजेंडा लेकर आए इस पूरे बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का। ये नहीं चलेगा। पूरे संत समाज में भारी रोष है, पूरे देश में आज भारी व्याकुलता है। वो कहना क्या चाहते हैं? कोई कहता है ये डेंगू है, कोई इसे मलेरिया बता रहा है, कोई कहता है ये भारी रोग है। एक ये सेट नैरेटिव्स खड़ा किया जा रहा है। एक ये कोई हिडन एजेंडा है कि पूरे भारत के हिंदुओं को निरंतर अपमानित करना है। भैया, हिंदू हिंसक नहीं, वो कभी भी नफरत नहीं फैलाता है, वो सबको गले लगाता है। पूरे विश्व में आज योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा हिंदू संस्कृति ने अपना औदार्य, अपनी करुणा और पूरे विश्व मांगल्य की संवेदनाओं को प्रसारित किया है। आज किस प्रकार से हिंदुओं का योग पूरे संसार में किया जा रहा है। आज हिंदुओं का आयुर्वेद, हमारी मान्यताएं, हमारे शिक्षक, चिकित्सक, हमारे अभियंता, हमारे वैज्ञानिक पूरे संसार भर में, पूरे विश्व को किस प्रकार से एक नई दिशा दे रहे हैं। राहुल गांधी जी का यह वक्तव्य घोर निंदनीय है। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। हिंदू समाज का वो ऐसे अपमान नहीं कर सकते। इस प्रकार से सदन में वह पूरे समाज को एक प्रकार से उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ये असह्य है और अक्षम्य है। स्वामी जी, फॉर ऑल द पीपल ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम टुडे, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे साथ आज जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई कंसिडर हिम टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू seers, living Hindu seers in the country today. And not just me, all of us know the significance of Juna Akhada. And we are grateful to you once again for coming today. दूसरी बात यह है स्वामी जी कि दिस फोकस ऑन हिंदुइज्म इन अ नेगेटिव वे, पहले भी इन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने 2023 जनवरी में, कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। इससे भी लोगों को ठेस पहुंची थी कि पूजा तो हिंदू धर्म का इट्स एसेंशियल रिचुअल। वो कभी ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? और वो कभी ये कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हाँ। उनको ये समझ ही नहीं आता है कि चंद्रमा से किरणें अलग कैसे हो सकती हैं, सूर्य से उसका प्रकाश कैसे अलग हो सकता है, जल से उसकी आर्द्रता, शीतलता अलग कैसे हो सकती है। उन्हें पता ही नहीं लगता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। एक कह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन में कहा, सॉरी स्वामी जी, इलेक्शन में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हम शक्ति से लड़ेंगे। तो ये बात भी तो ठीक नहीं है। या तो उन्हें ज्ञान नहीं है, और अगर अज्ञान अवस्था में ऐसी बातें कह रहे हैं तो बाद में माफी मांग सकते हैं, मगर इस पर अड़ जाना कि अगर अज्ञान है तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष का अर्थ है कि वो भारत के उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो विचार वहां रखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि, और ये कोई, मुझे लगता है सेट एजेंडा है, ये कोई बहुत पहले से कोई ऐसा है कि नैरेटिव्स खड़ा किया जाए। मुझे भी लगता है, और ये ठीक नहीं। स्वामी जी, मुझे भी लगता है ये सेट एजेंडा है, और ये भारत में जो एनजीओ लॉबीज हैं, इनका सेट एजेंडा है हिंदुओं के खिलाफ बोलना, हिंदुओं को तोड़ना। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे है, हमारे प्रधानमंत्री जी की समुंदर के नीचे जाके पूजा करते हैं। जब वो द्वारकाधीश मंदिर वहाँ गए थे तो इस तरह की बात भी कही थी, उससे भी ठेस लगा था। फिर वो कहते हैं जय श्री राम मत कहो, जय सिया राम कहो। जय श्री राम पर सवाल उठाए उन्होंने। और एक बात और कही जिस पर शायद मैं चाहता हूं आप कहें, कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे खुद भगवान है। ऐसी कोई बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी किसी वक्त नहीं कही। प्रधानमंत्री जी एक विनम्र सेवक हैं, वो उपवास रखते हैं, भूमि शयन करते हैं, वे इस देश के कल्याण के लिए अन्य त्याग देते हैं। उस जैसा एक उपासक, उन जैसा एक कोई आराधक इससे पहले मिला है क्या?
हर्षवर्धन के बाद, विक्रमादित्य के बाद एक ऐसा महापुरुष आया है जो सबके कल्याण की कामना कर रहा है। भारत का विकास तो देखें, भारत के प्रति आज पूरे विश्व में किस प्रकार की स्वीकृति पैदा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ की ओर से। आज प्रधानमंत्री जी केवल हिंदुओं के नहीं है या केवल भारत के नहीं है, पूरे विश्व के नेता के रूप में उभर कर आए हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्हें कोई आक्षेप लगाना चाहिए। एक बात तो यह है कि जैसे गंभीरता और ठहराव की जरूरत होती है, और वो ऐसे बाल मतलब छोटे से बच्चे तो नहीं, अभी 55 साल की उम्र उनकी हो गई है, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी मैच्योरिटी के साथ बात करें। जो उन्होंने आज भगवान शिव की जो वहाँ पे तस्वीर को लेकर, एक हाथ में, बाएं हाथ में भगवान शिव की तस्वीर को लेकर इस तरह से पोस्टर की तरह उसका उपयोग किया, उस पर भी स्पीकर ने कहा कि ये हमारे भगवान है, आप कृपया करके उनका फोटो ऐसे बाएं हाथ से ऊपर, उसकी तो स्थापना होती है, एक बाएं हाथ से उठाइए फिर गिराइए। ये उस प्रकार के संस्कार, विचार, संवेदनाएं उन्हें पता नहीं है। हो सकता है वो अपनी अज्ञानता, अविवेक के कारण ऐसा कर रहे हों, लेकिन हाँ, उन्हें समझना होगा कि वो पूरे एक बहुसंख्यक समाज को जो चिरकाल से इस धरती पे उदारता के साथ रहा है, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहा है, पूरे विश्व को अपना परिवार मान कर रहा है, उसको इस तरह से अपमानित न करें। उन्हें समझना होगा, एक सेंसिबल उन्हें टॉक करनी चाहिए। तो कोई गंभीर कोई विषय उपाय क्या है अभी? उनसे अपेक्षा भी करता है। उपाय क्या है अभी, रास्ता बताइए, क्योंकि इसमें बहुत लोग वायरल हो गई है। रास्ता ये कि उन्हें समझना होगा, उन्हें एक अच्छी संगति की आवश्यकता है। उनके जो सहयोगी हैं वो बताएं कि वो भारतीय सनातन संवेदनाएं क्या हैं, उन्हें बताएं कि गौ, गंगा, गीता, गायत्री क्या है, वो बताएं तीर्थ क्या है, यहाँ के कुंभ के मेले क्या है, वो बताएं भारत का जो इतिहास है, वो रामायण और वो है महाभारत, वो उसे समझें। उनको वैदिक बोध होना चाहिए, और ये न भी कर सके तो वो उन्हें सांस्कृतिक संवेदनाओं को समझना होगा। और मुझे लगता है कि ये अविवेक है, अज्ञान है। हो सकता है वो समझ जाए, हो सकता है कि उनके सहयोगी और साथी उन्हें बताएं कि भारत देश क्या है। वह पूरे देश नहीं है, ये संवेदनाएं हैं, यहाँ अनेक विचार हैं, अनेक पंथ हैं, यहाँ अनेक संप्रदाय हैं, और उनका नाम है हिंदू समाज। तो उस समाज की उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी भारतीय संवेदनाओं को, यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक निष्ठाओं से परिचित हों, और निसंदेह वो वहां पर कोई अच्छी बात लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी अवधेनाश गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नाकर त्रिपाठी जी, इसको डिफेंड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी रिपब्लिक भारत पे देख रहे थे, आप गुस्सा होकर डिफेंड कर रहे थे। ये माफ़ी मांगने वाली बात है, ये माफ़ी मांगने वाली बात है सरकार जी, इसलिए कि परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने बोल दिया। नहीं, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, पूरे भारत के लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए, बोल रहे दीजिए सरकार। फिर मैं बोलूंगा कि आपका चैनल, तो आप बोलेंगे कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू couldn't open your channel. So I am a vagabond by choice, sir, not by compulsion. तो आप मुझे बोल लेने दीजिए। तो स्वामी अवधेशानंद गिरी जी परम पूज्य हैं, जूना अखाड़ा के पीठाधीश हैं, और राहुल गांधी ने क्या किया, गलत किया? उन्होंने बीजेपी की ओर इंडिकेट करते हुए कहा कि ये जो लोग हिंदू बोलते, अपने को हिंदू बोलते हैं, मैं मैं भी हिंदू हूँ, जो हिंदू बोलते मैं भी हिंदू हूँ। और अगर आप कहते हैं कि अगर मैं अपने आप को हिंदू बोलता हूं तो मैं हिंसा, नफरत और असत्य फैलाता हूं। गोस्वामी जी, आप कह रहे हैं कि जो लोग, देखिए आपको मैं एक बात कहूं, रत्नाकर जी कृपया करके अपने आप को वैगाबॉन्ड ना कहे। आप अपने आप को मेरे प्रोग्राम में गाली क्यों दे रहे हैं? मैंने आपको वैगाबॉन्ड नहीं कहा। मैं हूं ना, मैं आवारा किस्म का आदमी हूं, मैं बोल तो रहा हूं। नहीं, आप अपने आप को आवारा समझे कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तो आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए पहले, है ना। राहुल गांधी ने बीजेपी की ओर दिखाया और इस बात को बोला कि जो लोग हिंदू बोलते हैं। यू हैव ऑब्जेक्शन कि उन्होंने बाएं हाथ से क्यों उठाया? बायां हाथ इनऑस्पिशियस होता है क्या सर? पत्नी को वामांगी कहते हैं। चलिए, आपको जो आप चाहते हैं, पत्नी भ्रष्ट है, पत्नी ठीक नहीं है। देखिए, मैं अभी रत्नाकर जी मेरी बात सुनिए। अभी मैं दूसरे साइड से रिस्पॉन्स लूंगा। आज हमारे प्रोग्राम में रत्नाकर जी ने कहा कि मैं एक राजनीतिक पर्यटक हूं।
I'm a tourist, I'm a vagabond, I'm an avara. But you are not leader of opposition. One minute. आप अपेक्षा है लोगों की, अब संजू वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगी। एक एलओपी तो वैगाबॉन्ड की तरह बात नहीं कर सकते। वैगाबॉन्ड की तरफ और मैं आपको एक सवाल पूछूं, मैं सवाल पूछता हूं आपको, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, रत्नाकर जी, कृपा करके शांत हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ भी बोलता आप गुस्सा करते, तब से चुप था मैं। मेरी बात सुन, कृपा करके। कौन सी गलत बात बोली? मैं समझाता हूँ आपको। आई विल एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। दोस्तों, आपने मुझे बुलाया है, मुझे इंग्लिश और हिंदी में समझाता हूँ। अरे मुझे 10 सेकंड, इंग्लिश और हिंदी में समझाता हूँ, प्लीज लेट्स नॉट। अरे आप मुझे 10 सेकंड देके मेरी बात भी समझ लीजिए। अरे आप, मैं 6 लोग पैनल में बाकी है, मैं अकेले आप बोलेंगे कैसे चलेगा? मैं एक संजू नहीं, मैं दूंगा आपको। मैं प्लीज संजू वर्मा, मैं एक लाइन कहूंगा, एक लाइन। इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने नहीं कहा कि बीजेपी के लोग अपने आप को हिंदू कहते, नहीं, इन्होंने नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते, यानी कि हमारे यहां पे विनोद। एक मिनट रत्नाकर जी, ये आप बात को ट्विस्ट मत कीजिए। उन्होंने कहा, अरे एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट, शांत हो जाइए। सच्चाई कड़वी होती है। इन्होंने कहा, उनका वाक्य था, संजू वर्मा जी और विनोद बंसल जी लेफ्ट पे, और इस वक्त हमारे डिबेट पर अनुराग भदौरिया होंगे राइट पे और संतोष मेहरोत्रा होंगे राइट पे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा करते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत करते हैं, असत्य करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, आई वुड लाइक टू आस्क, वुड राहुल गांधी बी एबल टू लुक एट असदुद्दीन ओवैसी जो ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं, है ना, उनके खिलाफ देखकर कहेंगे कि जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो हिंसा करते हैं? समझ में नहीं आता। कहेंगे नहीं कहेंगे, उनकी सेंसिटिविटी है, नहीं कहेंगे, मगर हिंदुओं की तरफ कोई सेंसिटिविटी नहीं है। परीक्षा क्यों यहाँ नहीं, अनुराग जी, नहीं चलेगी। की परीक्षा क्यों लीक हो जाती है? 25 लाख बच्चे। This man is always out of syllabus. We are discussing Rahul Gandhi. This man is blabbering about हिंदुस्तान के 25 लाख बच्चे। अब 25 लाख बच्चों का जो पर्चा लीक हुआ है, उनका फ्यूचर भविष्य का, उनके भविष्य का क्या होगा? ये भी सवाल उठाया गया। मुद्दा बदल रहे हैं, बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में मुद्दे पे आए कि यहाँ पे विकास की राजनीति होनी चाहिए। ये भी पार्लियामेंट में बोला गया कि भाईचारा होना चाहिए। तो आप इस शब्दों को क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? मुझे समझ में नहीं आया। अगर कहे कि मैं हिंदू हूँ, हमेशा क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या रत्नाकर एंड संतोष मेहरोत्रा यहाँ पे अच्छा सा वातावरण बना के रखना, क्या सुसुरिया लगाना चाहो? राहुल Gandhi has said that those who call themselves Hindu are hateful. Rahul Gandhi has said, exact translation, viewers, exact translation. He has said that those who call themselves Hindu are hateful, liars and violent. This is the exact English translation. Sanju Verma. Exactly. You know, Arnab, first and foremost, I don't think, like Arnab Goswami does not need lessons in journalism from Sanju Verma. I'm sure, you know, I have a lot of disagreements with Professor Mehrotra, but I don't think Professor Mehrotra knows the basics, needs to learn the basics of textbook economics from any XYZ. Similarly, I don't think any bona fide Hindu needs to learn about Hinduism or Hindutva or what have you from a Hindu phobe like Rahul Gandhi. अभी थोड़ा अर्नब जी राहुल गांधी के डीएनए के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी proudly says, I am a Janeyudhari Dattatreya called Brahmin. Yes, 1/4 DNA of Rahul Gandhi is that of a Dattatreya called Brahmin. Another 1/4 by virtue of his mother Sonia Gandhi being a practicing Catholic, 1/4 of his DNA is that of a Christian. Another 1/4 of his DNA by virtue of his Dada Feroz Gandhi being a Parsi, Rahul Gandhi Parsi thehre. And last but not the least, 1/4 of his DNA by virtue of his Nana, यानी कि सोनिया गांधी के पिताश्री
तो मैं तो ये कहूंगा अर्नब, सवाल ये इस देश के अंदर में कि मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भागती है। राष्ट्र के मुद्दे, ये राष्ट्र के मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी हारी है। इन्हीं मुद्दों पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारा है, महाराष्ट्र में हारा है, और देश में हारा है। जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता के मुद्दों आप हिंदुओं को गाली देते हैं और यहाँ मुद्दे उठा रहे हैं। बेवकूफ समझा हुआ है आपने। राहुल गांधी ने जो मुद्दे आप यहाँ उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने तो नहीं उठाया। आज वेस्ट बंगाल में सड़कों पर लड़कियों को खींच खींच के मारा जा रहा है, वो राहुल गांधी ने मुद्दा नहीं उठाया। आप यहाँ पर आकर के विकास के मुद्दे उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में पोजीशन किसने दी थी, किस लिए दी थी? यही कि ये मुद्दे वहां उठाए, ना कि वहां पर हिंदुओं को इंगित करके कहे कि हिंदू हिंसक हैं। उन्होंने भगवान शिव की अभय मुद्रा को इस्तेमाल करते हुए ये कहा, he said that this is the अभय मुद्रा. How dare he uses the अभय मुद्रा which is actually held by deities, gurus and saints as his political symbol. He has very wrong, बहुत गलत है। What was he doing? He was out of his senses. He's got all illiterate, uneducated advisors who can't tell them how. साध्वी जी, I've been sitting very patiently. Give me 30 seconds. Sadhvi ji, I want to get two other speakers. I'll come to you because there is a lot of anger. I know. No, I'm coming to you, Sanju. I'm coming to you. This is a very, very hot debate. Why did Mr. Bhadoria advise Rahul Gandhi to take forward the BJP? There he was abusing Hindu. Speaking rubbish non-stop for 5 minutes, and you indulged. Do I need to learn lessons on Hinduism from Asaduddin Owaisi, who believes that the earth is flat, who believes that after your death, आपको जन्नत नसीब होगी, आपको 72 हूरें नसीब होंगी? Will Rahul Gandhi have the guts to say? Rahul Gandhi was mum when he said Jai Philistine. When they gave in the parliament of India, he was very sleepy. Rahul Gandhi was sleeping. चार्ली हेब्डो कर देते हैं, जो मुसलमान अल्लाहू अकबर बोल के ऑरलैंडो में नाइट क्लब की बॉम्बिंग कर देते हैं, जो मुसलमान अल्लाहू अकबर बोलकर मैनचेस्टर में बॉम्बिंग कर देते हैं, मक्का मदीना में बॉम्बिंग कर देते हैं, टर्की के एयरपोर्ट में बॉम्बिंग कर देते हैं। अभी उन असदुद्दीन ओवैसी के नुमाइंदे राहुल गांधी जैसों से हमको हिंदुइज्म पे क्या भाषण मिलेगा? इट इज पहली बात, जैसे संजू विनोद बंसल जी, जैसे आचार्य श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा, उन्होंने कहा ये वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है। ये ऐसी बात नहीं है कि ऑफ द रिटन स्क्रिप्ट जाके उन्होंने ऐसे ही कह दिया, मतलब सोच समझ के आए थे। उन्होंने भगवान शिव की एक पोस्टर लेके आए थे, एक फोटोग्राफ लेके आए थे, एक तस्वीर लेके आए थे, और उसको बाएं हाथ से ऊपर नीचे उन्होंने 11 बार की। जब स्पीकर ने कहा आप भगवान शिव के साथ ऐसा ना करें, तो वो मुस्कुराते हुए हंसने लगे। मतलब प्रोवोक करने की कोशिश पूरी चल रही थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका मतलब इस पर इतना गुस्सा जो फैल गया, ये राजनीतिक गुस्सा है क्या? नहीं विनोद जी, मुझे लगता है राजनीतिक गुस्सा नहीं है, आम लोगों में गुस्सा हो गया है। एक मिनट जी, पार्टी से कि कब मुस्कुराए, मुस्कुराने के लिए बीजेपी से पूछना पड़ेगा। क्या बात करते हैं अर्नब भैया? आप सुपरफिशियल बात मत कीजिए। अगर आप विनोद बंसल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, विनोद बंसल जी अपनी बात रखेंगे। विनोद बंसल जी विल स्पीक नाउ, प्लीज। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल, विनोद बंसल एंड संतोष अर्नब जी, you see, yes, about Hindus, he has not only alleged by 3 words, but all those 3 words has been repeated thrice. जी भाई हिंसक है, हिंसक हिंसक, असत्य असत्य असत्य, नफरत। आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी आज पहली भाषण में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वो जो कल जो मैच देख रहे थे कि पहले ही बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में थे और लगता है क्लीन बोल्ड हो गए। मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए कि जिस तरह से एक लीडर ऑफ अपोजिशन का एक संवेदनशील भाषण होना चाहिए था, देश की समस्याओं को उजागर करते हुए कोई बात रखनी चाहिए थी, उन्होंने सीधा सीधा हिंदुओं के ऊपर आघात कर दिया। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो पुराना था, पिछले 70 वर्षों में जो कांग्रेस करती चली आ रही है, आज सदन के पटल पर आ गया। कांग्रेस ने किया तो अर्नब जी, लेकिन बोला अभी तक नहीं। सदन के अंदर जिस तरह से विभत्स भाषा का प्रयोग किया,
संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज को ही नहीं बल्कि पूरे शांतिपूर्ण समुदाय को इन्होंने कलंकित करने की जो कोशिश की है, कांग्रेस के पाप का घड़ा आज फूट चुका है। इसको समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इनका चाल क्या है। आप देखिए कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को बोला। अरे भाई बीजेपी को बोला तो बीजेपी का वर्ड तो आना चाहिए उसमें। सदन के पटल पर एक एक शब्द की काउंटिंग होती है भाई, नहीं, एक एक पूरे शब्द हिंदू की समाज नोटिंग को होती कहा। है। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और पूरे हिंदू समाज को कहा। और आप देखिए कि ये वही मानसिकता है जो आपने बताई, जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चली थी। ये वही मानसिकता है जो गौ हत्यारों के साथ खड़ी रहती है। ये कहते हैं बीप पार्टी करेंगे, दिस इज अवर राइट। ये वही मानसिकता है जिसने 1966 में ये बोट क्लब पर जिस तरह से निहत्थे साधुओं को मरवाया था, यही कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की सत्ता थी उस समय। और यही कांग्रेस है जिसने 1984 में दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम कराया था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कांग्रेस को, लीडर ऑफ अपोजिशन को पहले इस सदन में इससे इन सब चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी उनको, और फिर उसके बाद में अपनी बात कहनी चाहिए थी। तब तक समझ में आता है कि हाँ, कांग्रेस से पाप हुए हैं, कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया है। यह समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने कश्मीर की समस्या को हमेशा से देश के लिए नासूर बना के रखा है। वन शुड अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज इट। और आप देखिए कि ये एक नहीं है, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप चलता चला गया। और आज कांग्रेस ने वो काम किया है, संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को देश में हुआ है। ये जबरदस्त, किस देश के बच्चे? जबरदस्त अटैक किया। याद है कि भूल गए? किस देश के बच्चे थे? 25 लाख बच्चे किस देश के थे? किस देश के हैं जिनका पर्चा लीक हुआ है नीट का? किस देश के बच्चे हैं? नाम है भाई, बताइए। क्या भूल गए वो निहत्थेकार सेवकों को? निहत्थेकार सेवकों को मरवाने वाले बच्चों की चिंता है 25 बच्चों को लेकर घूम रहे हैं। उनके घरों में तकलीफ है। मैं कहना चाहता हूं कि एएनआई की एक रिपोर्ट है, चिंता है कि नहीं आपको? एएनआई ने एक एक्सपोज किया है हैदराबाद के बारे में। I think that another thing I want to point out, Bansal ji, Anurag ji, I want to point out one more thing. Another view is that why did Rahul Gandhi carry out this self goal? Was he under instruction? नहीं, उनको क्या कोई विदेश से इंस्ट्रक्शन आई है? क्योंकि संतोष मेहरोत्रा, I find that every interval of 3 months, Santosh Mehrotra and Shivani Durga, spiritual guru, is with us. Santosh Mehrotra, Rahul Gandhi is a habitual offender when it comes to targeting Hinduism. Santosh Mehrotra. Today he not only used Lord Shiv's image and misappropriated it, he called Hindus violent, but he's a habitual offender. He's permanently taking Santosh Mehrotra an anti-Hindu position. He laughs at Narendra Modi going under the sea to do puja. He does not understand. He speaks against Jai Shri Ram. He meets a priest, during a Bharat Todo Yatra when he was in Kanyakumari. He met a pastor who was earlier arrested for anti-Hindu comments. Then he says that ye desh pujariyon ki nahi hai. He says that Hindutvavadi people spread hatred. And in the US diplomatic cables, he says to American diplomats that Hindu radical groups are a bigger threat than Lashkar-e-Toiba. So I have proven that the man has an anti-Hindu position. That's right. Anti-Hindu position is at his core of his political philosophy. Mr. Mehrotra, but it became too obvious. First speech at leader of opposition. First speech. And you take this kind of a line. Mr. Goswami, may I speak now? Yes. Thank you very much, sir. Your byline itself is saying Modi is not a Hindu. That's what Rahul said. And he pointed towards the BJP, and that's what he said, that the BJP doesn't believe in Hinduism. It would have helped his case if he had also quoted Veer Savarkar on this matter, and I'm going to quote Veer Savarkar on Hindutva and Hindu Dharma and what is the difference in their view. And I want to remind you what Guru Golwalkar himself... Why do you want to divide Hinduism from Hindu Dharma? First of all, I don't understand this logic. What is this woke approach? You want me to stop straight away? No, but why do you want to divide Hinduism from Hindu Dharma? It's all together. Excuse me, may I finish telling your readers and your listeners about what Veer Savarkar said? May I?
Otherwise, I can leave. I don't have to be on your show for 40 minutes listening to raving and ranting and diversionary. Please don't say raving and ranting. Lies words. To listen to Veer Savarkar's quote, or you not Rahul going to Gandhi, listen what to he it? has said. Thank Forget you, about sir. Veer Savarkar. You're going to- Veer Savarkar Now, is not in question now. The matter in question is Don't Rahul leave. Gandhi. Debate. Don't leave debate. He's working like he's saying like a Rahul Gandhi. Whether he's Rahul Gandhi or it's Rahul Gandhi. Person, shout me out. No, I'm not letting anyone shout you out. You can shout him back, no problem. BJP behaves in parliament. You are shouting. You are shouting, my dear sir. To tell you. By throwing mud on Veer Savarkar, you cannot be escaped. That Veer Hindutva Savarkar is not you call identical him with with due what is respect. vaguely indicated by the term Hinduism. By ism, it is generally Kindly meant say a something theory or to a the Rahul code Gandhi. on He is the son of a foreign lady. He is the son of a practicing Catholic Shut up. We have lady. already tried already to draw a line of demarcation between Santosh Mehrotra, okay. Since Shivani Durga wants to contribute, Shivani Durga on the left versus Santosh Mehrotra, Shivani Durga. Shivani Durga, then I'll come in. Identical with Hindu dharma, nor is Hindu dharma identical Shivani Durga. Har Har Mahadev to everyone. I think he's also listening. Some words going into his head. What he is talking. Namaskar. Namaskaram. Har Har Mahadev. How means it? Did you get any right to shout on national channel? He left. Ratnakar. No, you continue, Shivani Durga. You continue. No, I have Ratnakar on the right here. No, I just wanted to talk about this Abhay Mudra. Rahul Gandhi was showing the picture of Lord Shiva and talking about Abhay Mudra. So Abhay Mudra, he shows to his devotees and bless them with Abhay, means the fearless. He is fearless and he is blessing fearlessness to his devotees. तो अगर राहुल गांधी ये बार बार बोलते हैं, उन्होंने जिस तरह से फोटोज दिखाई हैं और जिस तरह से वो अपमान करते हैं हिंदुओं का, तो ये एजेंडा ही तो है और उनकी माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हमें नहीं चाहिए उनकी माफी. We don't want his apology. वो अपना पद त्याग दें क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो हिंदुस्तान में रहें और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को अपमानित करते हैं, हिंदुओं के लिए बोलते हैं. एंटी हिंदू उनका एजेंडा है, सभी जानते हैं. उनकी सिस्टर बोलती हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं. प्रियंका जी ने बाद में ये कहा कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो कहा है सही कहा है. तो ये अपने आप में स्टेटमेंट है कि ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू एंटी नेशनल है और हमें इस तरह की पार्टी नहीं चाहिए. Arnab, just give me 30 seconds and that's... Sanju, just 30 seconds. I want to make a point. Give me 30 seconds. You know, every time Rahul Gandhi says something and creates an uproar, he has all the Darbaris who have to come and explain. Last time he said he want to fight the Hindu Shakti. Then everybody who had, they were, no, he didn't say this. No, he didn't say that. He means that. Why can't he say what he means? Why do you have to explain what he meant? Does he know what he means? The problem is, you know, because he is meaning and now you are confusing the people. It was such a disgrace that after 10 years of practice sitting in the opposition, they do not know how to behave as a constructive opposition and they are rattled by because they are not in power for last 10 years and another 5 years are going. It is absolutely, you know, and as a Hindu, as a sadhu, I would say his handling and display of Bhagwan Shiv's picture was outright violation of Hindu values. Bhagwan Shiv is a revered deity. And the way this is a blatant disregard of Sanju and then Ratnakar. This is not... Sanju, okay, I gave you 30 seconds. Sanju. Yes. Arnab, you know, I just want to tell Rahul Gandhi, what did he say? ये जो 24 घंटे हिंदू करते हैं, इनमें सिर्फ नफरत है, हिंसा है. ये सिर्फ असत्य बोलते हैं. So let me just say, Rahul Gandhi and his lies in 10 seconds, and on each of these lies,
Rahul Gandhi has been caught on the back foot by none other than the Supreme Court, which called out his bluff. Lies, Aadhaar, Pegasus, Rafale, इस पर I think Galwan, Sengol, Ram Mandir, NSP, everyone. Shaheen Central Vista, reservations. नहीं, this will become big. इसमें तो मुझे लगता है the only way is an apology. आप बताइए, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला था। तो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला था। अगर हम बोलते हैं बीजेपी झूठ बोलती तो क्या गलत बोला था हमने? भारतीय जनता पार्टी तो यही कहा था ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रॉमिस कि काला धन वापस आ जाएगा। वापस आ गया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। There are 100 crore Hindus in India. अनुराग जी, there are 100 crore Hindus in India. आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को ने ठेका नहीं लिया है, ना बीजेपी ने लिया है, ना बीएचपी ने लिया है, मगर 100 करोड़ हिंदुओं को गाली देना बहुत बड़ी बात होती है। बंसल जी, 100 करोड़ हिंदुओं को गाली देना बहुत बड़ी बात होती है। वो पूरे बंसल जी, वही मैं कह रहा हूँ। ये तो एक तरफ वो पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को काला कर रहे हैं और ये इनको काला दिन की याद आ रही है। अरे भाई, वो पूरे भारत को काला करने वाला है। नहीं, और क्यों कह रहे माइनॉरिटीज देशभक्त है? ये कांग्रेस है, उनकी थिंकिंग देखिए बंसल जी, माइनॉरिटीज सारे सब माइनॉरिटीज देशभक्त है, और जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो नफरत हिंसा करते हैं। ये क्या बात हुई रत्नाकर जी? यही है, आश्चर्यचकित चाल। एवरीवन, आपका चश्मे से जो आपको दिखता है और बंसल जी के चश्मे से जो दिखता है, देख रहे हैं। घायल होते हैं लोग जब एयरपोर्ट। आप भी चश्मा पहन के आप सही नहीं देख रहे। आपको कोई आप चश्मा पहने, आप देख नहीं पा रहे। मैं तो राष्ट्रभक्ति का चश्मा पहना हूँ। मल्होत्रा जी ने बोलना चालू किया, वीर सावरकर के बारे में साइज करना चालू किया, बंसल जी भाग गए। सुने होते ना, उसके कारण ऐसा हो रहा है। सावरकर ने क्या बोला? भाग तो आप लोग गए। अरे मैं कहता हूँ, देखिए जो हिंदू को कारण ऐसा हो रहा है।